ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو آد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ عربی کا جو اصول ہے، اگر وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ ہوتا تب بھی یہ جملہ مکمل تھا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ لی کا مطلب ہے میرے لیے، لا کا آپ کے لیے، تو محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ آپ کے لیے کیوں بلند کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ کے نگاہ علم میں ہے یہ بات کہ محبوب جب والضحیٰ کے چہرے کی بات ہوگی، واللیل کی زلفوں کی بات ہوگی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والی بات ہوگی، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہوگا، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہوگا، طٰہٰ کے تاج کا ذکر ہوگا، یاسین کے سیرے کا ذکر ہوگا، محبوب آپ کے کمالات اور معجزات کا ذکر ہوگا، آپ کی سیرت اور صورت کا ذکر ہوگا، آپ کے کمال اور حسن و جمال کا ذکر ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو محبوب آپ کو اپنے قلب نازنی پر بوجھ دینے کی ضرورت نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم جو ہیں آپ کا ذکر بلند کرنے والے۔ عزیزان محترم، پھر یہ بھی یاد رکھیے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود رب العالمین نے بلند کیا۔ اور کیسے بلند کیا؟ اس کے 3 جوابات مفسرین نے، محدثین نے کتب حدیث اور تفاسیر کے اندر بیان کیے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت نکتہ بیان کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر کے اندر ایک یہ بھی بات ہے، آپ آج کسی کو بلائیں، کسی ایک شخصیت کا ذکر سنائیں، اگلے دن پھر بلائیں، پھر کسی کا ذکر سنائیں، تیسرے دن پھر بلائیں، پھر اسی کا ذکر سنائیں، چوتھے دن مجمع اور مجلس کے اندر لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار جب بھی جاتے ہیں ایک ہی کا ذکر ہوتا ہے، ایک ہی شخصیت کو سرنامہ سخن بنایا جاتا ہے، روزانہ ایک ہی کی بات ہوتی ہے، اور آئندہ ہم نہیں جائیں گے یار کبھی کسی اور کا بھی ذکر کر لیا کرو۔ قاضی عیاض فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جب ایک دن ذکر ہوگا لوگوں کے اندر سرور ہوگا، دوسرے دن پہلے سے زیادہ لوگ آئیں گے، تیسرے دن پھر زیادہ آئیں گے، چوتھے دن پھر زیادہ آئیں گے۔ فرمایا جوں جوں وقت گزرتا جائے گا عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم بڑھتا جائے گا۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر میں اتنا لذت رکھ دی ہے، یہ روزانہ ہوتا جائے گا تو دل مزکہ مصفہ مجلہ ہوتا جائے گا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ اذا ذکرت ذکرت معی،
महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र होगा। कुरान मजीद में मेरा जिक्र होगा, महबूब आपका जिक्र होगा। नमाज में मेरा जिक्र होगा, आपका जिक्र होगा। आजान में मेरा जिक्र होगा, महबूब आपका जिक्र होगा। खुतबा वाज हो, खुतबा निकाह हो, खुतबा जुम्मा हो, खुतबात में जहां भी महबूब मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र होगा। इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, महबूब हमने ये लाजिम कर दिया है जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र जरूर होगा। मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। वरफ़ाना लका ज़िक्र की तफसीर के अंदर फरमाते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक ज़मीन पे रेंगते हुए कीड़े को उठाया और उससे सवाल किया, ऐ कीड़े ये बता, तुझे अल्लाह ने जो पैदा किया है, तेरी तख्लीक का मकसद क्या है, तू करता क्या है? चूंकि वो अल्लाह के नबी हैं और नबी से हर मखलूक बात कर भी लेती है और नबी सुन भी लेते हैं, हर की बोली समझते भी हैं। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कीड़े से दाऊद अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तू क्या करता है? उसने कहा, सुबह जब होती है तो मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम पढ़ता हूँ, और जब रात होती है तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, सुबह तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद भेजता है, रात को अल्लाह का जिक्र करता है, वजह क्या है? तो वो जवाब देने लगा, मेरे दिल पर यह इल्का हुआ है कि अल्लाह जिक्र भी वही कबूल करता है जो पहले खुदा का जिक्र करे फिर मुस्तफा का जिक्र करे। तो अजीज़ान मोहतरम, नबी उम्मी की बात पर आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर बहसें हो रही हैं। एक बात याद रखिए, उम्मी का माना करने वाले तीन गिरोह हैं। एक गिरोह है जोहला का, दूसरा गिरोह है उलमा का, और तीसरा गिरोह है औलिया का। और औलिया होते वही हैं जो आलिम होते हैं। अल्लाह किसी जाहिल को फकर देता ही नहीं है, ये विलायत किसी जाहिल को नहीं बख्शता। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, अगर उलमाए रब्बानी आलिम रब्बानी और आलिम हक का वली नहीं होता तो जमाने में कोई वली हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इल्म वो है जिससे दरजात बुलंद होते हैं। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी उम्मी का माना करने वाले तीन गिरोह। पहला वो गिरोह है जो जाहिलों का है, जो नबी उम्मी कहते हैं, उम्मी कहते हैं अनपढ़ को। हालांकि अनपढ़ का माना, उम्मी का माना अनपढ़ नहीं है, ये जाहिलों की अपनी एक तफसीर है, अपना माना है, अपनी एक तखरीब कारी है। मगर उलमा ने क्या कहा कि उम्मी वो होता है जिसको किसी इंसान ने न पढ़ाया हो, जिसको खुद रहमान पढ़ाए, उसको उम्मी कहते हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसको खुद रहमान पढ़ाए, जिसको कुरान खुद रहमान सिखाए, जिसको तालीम खुद रहमान दे, ऐसी शख्सियत को उम्मी कहा जाता है। और सूफिया क्या कहते हैं, इमाम शारानी क्या फरमाते हैं? फरमाया, उम्मी का माना यह है, ओम कहते जड़ को, ओम कहते असल को, ओम कहते रूह को, ओम कहते हैं असल कायनात को। फरमाया, जब कोई ये दरूद पढ़ता है वो कहता है, ऐ अल्लाह दरूद भेज उस नबी पर जो असल कायनात है, जो पूरी कायनात की रूह है, जो पूरी कायनात की जड़ है। और फिर फरमाते, उम्मी का माना यह भी है, अरबी में माँ को भी उम्मी कहते हैं, ओ मेरी माँ, उम का माना माँ है। और जब कोई अरबी बोलने वाले माँ को बुलाते तो कहते या उम्मी, ऐ मेरी माँ। तो इमाम शारानी ने कहा, उम्मी का एक माना यह भी होता है कि जब कोई कहता है या उम्मी, ऐ मेरी माँ, तो ये नबी उम्मी इसलिए भी है कि माँ का दिल इतना नरम होता है, इतना नरम होता है, माँ के सामने अगर बच्चे को सजा दी जाए तो वो कहती है मेरे बच्चे को सजा न मिले। वो सजा से बचाने के लिए अपने बेटे को अपने दुपट्टे के आंचल में कभी दाएं तरफ छुपाती है, कभी बाएं तरफ छुपाती है। कहा नबी को नबी उम्मी इसलिए भी कहा जाता है, जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला आलम जलाल में होगा, अगर किसी उम्मती के लिए सजा का हुक्म सादिर होगा तो मेरे मुस्तफा करीम अपनी कमली में कभी उम्मती को इस तरफ छुपाएंगे, कभी इस तरफ, इसलिए नबी उम्मी कहा जाता है, इसलिए नबी उम्मी कहा जाता है। तो हजूर वाला वारफाना लक जिक्र की एक तफसीर ये, इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, महबूब जहां मेरा जिक्र होगा आपका भी होगा। और दूसरी तफसीर क्या है, जाल तो मिन जिक्र का जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। और तीसरी तफसीर क्या है, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा कि तीसरी तफसीर इसकी ये बनती है कि
अल्लाह फरमाता है जो महबूब मेरा जिक्र तो करे मगर आपका जिक्र न करे, हम ऐसे जिक्र करने वाले का जिक्र उसके मुंह पे मारते हैं, कबूल उसी का जिक्र होता है जो आपका भी जिक्र करता है, मेरा भी जिक्र करता है। यही वजह है कि आप देखें जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सना पढ़ते हैं उसका जिक्र है, फातिहा पढ़ते हैं उसका जिक्र है, फिर कुरान की कोई सूरत पढ़ते हैं, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र है, सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हैं उसका जिक्र है, सुभान रब्बियल आला कहते हैं ये उसका जिक्र है। अत्तहियात पढ़ते पढ़ते अचानक आप कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पढ़ते हैं ना। आखिर वजह क्या है? ये नमाज में जिक्र करते करते अचानक आपकी तवज्जो जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ दी जाती है। इसका सबब क्या है? इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी की शरह के अंदर ये बात लिखी है। अल्लाह ये बताना चाहता है कि जब अल्लाह अकबर, ये तकबीर तारीमा से नमाज क्यों शुरू होती है, हाथ उठाने से क्यों शुरू होती है? बंदा अपने रब की बारगाह में कहते हैं मेरे मालिक मैंने सबसे हाथ उठा लिया है, अब सबको पीछे छोड़ दिया है, अब तेरी बारगाह में मैं हाजिर हो गया हूं, अब मेरा माबूद भी तू है, मेरा मतलूब भी तू है, मेरे लिए मौजूद भी तू है और मेरे लिए सब कुछ तू है। ये तो सूफिया ना माबूद भी मानते हैं और अपना महबूब भी मानते हैं। बहरहाल अब हाथ जो है तकबीर तारीमा से हाथ उठा के मेरे मालिक हमने सबसे मुंह मोड़ लिया है। अब अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी बड़ी खूबसूरत लिखते हैं बात उम्दतुल कारी में, फरमाते बात यह है अब बंदा पहले सना पढ़ता है, फिर फातिहा पढ़ता है, फिर सूरत पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला अचानक अपना जिक्र करवाते करवाते दरबार रिसालत की तरफ उस नमाज पढ़ने वाले को मोड़ देता है। अल्लाह यही बताना चाहता है जब तुम मेरी बारगाह में आए हो तो जाने कायनात की बारगाह मेरी बारगाह से जुदा नहीं है, क्योंकि हमने ये कानून बनाया है हम जिक्र ही वही कबूल करते हैं जिसमें महबूब का जिक्र होता है। और अगर महबूब का जिक्र कोई ना करे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता रहे और अल्लाह का जिक्र करे, लोगों को भी यही तबलीग करे कि सिर्फ अल्लाह की बात करो, तो ये मेरे महबूब की हदीस पाक है, वो जिक्र कबूल नहीं होता जिसमें खुदा का जिक्र तो हो मगर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र ना हो। तो ये आप कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान में आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। अगर ये हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन होता तो तब भी जुमला मुकम्मल था। ये अलिफ लाम क्यों है? अब अलिफ लाम जो है ये कौन सी इसकी किस्म है? वो जिनसी है, इस्तगराकी है, खारजी है या कौन सी है? ये तो आले इल्म जानते हैं ना। तो इसका एक सादा मैं तर्जमा ये बता दूं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है। एतराज़ करने वाले कहते हैं किसी और का जिक्र ना करो, सिर्फ उसका जिक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना यह है, अगर वो अलिफ लाम का माना सर्फ नाव और ग्रामर के लिहाज से समझ जाए तो वो एतराज न करें, क्योंकि कुरान में जहां ये लिखा हुआ है कुल वल्लाहु अहद, जहां ये लिखा है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, जहां लिखा है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, उसी कुरान में ये भी है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उसी कुरान में लिखा हुआ है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी कुरान में लिखा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। अब आप सोचेंगे अल्लाह फरमाता है तमाम तारीफें तो सिर्फ मेरे लिए हैं और यहाँ महबूब का जिक्र खुद फरमा रहा है। तवज्जो है कि नहीं? और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। वलियों का जिक्र भी है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये नफ्स मुतमइन्ना वाली रूह का जिक्र भी है, औलिया का भी जिक्र है, बल्कि असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र भी कुरान में है कि ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। क्यों कि 309 साल उसने वली का दर नहीं छोड़ा। अगर कुत्ता वली के दर पे बैठ जाए तो कुरान कहता है वो भी जन्नत में जाएगा, और जो बंदा वलियों के दर पे बैठेगा उसके जन्नती होने में कौन शक कर सकता है? अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसीर में ये बात मौजूद है। अलिफ लाम ये बता रही है कि तुम बाकी जो अज़कार कुरान में है इसको जिक्र खुदा से जुदा न समझो, कि जब कोई किसी बिल्डिंग का जिक्र करता है ये इमारत बड़ी अच्छी है तो इमारत के साथ उसके बनाने वाले की तारीफ होती है। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मफहूम ये है कि जब जाने कायनात का जिक्र करोगे ये भी खुदा की तारीफ है, औलिया का जिक्र करोगे ये भी खुदा की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का अलिफ लाम बता रहा है ये जितनी इज्जत है और शान अल्लाह ने जिसको दी है वो खुदा की इज्जत और शान से जिक्र से जुदा नहीं है। तो फरमाया वाकिमिस सलात अल ज़िक्री,
ये जो नमाज है ये भी मेरा जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान भी मेरा जिक्र है। मेरे जिक्र में, मेरी तारीफ में, मेरे मुस्तफा की तारीफ भी इसलिए है कि जब तुम आयात कुरानी पढ़ो तो ये तुम्हारा कुरान पढ़ना अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। और नमाज में भी महबूब का जिक्र इसलिए है जब नमाज पढ़ो तो नमाज तुम्हारी कबूल हो जाए। ये नमाज के अंदर शर्फ कबूलियत के लिए जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बताया अल्लाह के हुक्म से। मेरे महबूब खुद तो नहीं बोलते, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा महबूब वो है जो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, अल्लाह फरमाता है तो मेरा नबी बोलता है। अजीज़ान मोहतरम, क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ आ गया था और अभी मकबूल फ्लोर मिल के अंदर ना 10 बजे खिताब है, आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने पहले जहाँ ज़ेब को कहा है भाई मैं काफ़ी देर का आ चुका हूँ, जितनी देर आप लेट तकरीर शुरू कराएंगे 9:45 बजे मैंने तकरीर ख़त्म कर देनी है। मेरी तरफ से आप 9:30 बजे तकरीर शुरू करवाएं, ठीक है? तो ये हम तो अजान से भी पहले के आ गए हैं। हमारा टाइम जो है ना, हमारे टाइम में कोई कोताही और गफलत नहीं है। आप मुझ पर फतवा ना लगाना कि थोड़ी सी तकरीर करके चले गए, हम पहले के आए हुए और बार बार कह रहे हैं जल्दी करें, क्योंकि जब ये टाइम मिला है उसी वक्त ये बात तय पाई थी कि हम पहले आ जाएंगे और हमारा खिताब 9:15 बजे शुरू हो जाए, ताकि 9:45 बजे 1 घंटा, अगर 9:15 के बाद आप जितना शुरू कराएंगे ये टाइम आपके खाते में। तो अब आखिरी बात, और 5 मिनट चूंकि रहते हैं, यहाँ से जाने का भी सफ़र है, 10 बजे वहाँ खिताब है। वारफ़ाना लका ज़िक्रक की तफसीर के अंदर इब्न कसीर के अंदर एक खूबसूरत बात है, और भी कई तफासीर के अंदर ये बात है, कई कुतुब के अंदर है, सीरत की किताबों में ये बात है, शवाहिद और नबूवत के अंदर ये बात अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा ने लिखी है, दलाइल और नबूवत के अंदर भी ये बात मौजूद है, और जनाब वाला तारीख़ुल खमीस के अंदर ये बात है, तारीख़ इब्न कसीर के अंदर है, तफसीर रूहुल बयान के अंदर है, कितनी तफासीर के अंदर ये बात है। हजरत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जब जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो मक्के के लोग आपके दुश्मन हो गए, माज़अल्लाह प्रोपेगंडे बनाने लगे कि आपको शहीद कर दिया जाए। हजरत जुबैर बिन मुतअम कहते हैं, मैं रोजाना जाता वद्दुहा के चेहरे की जियारत करके सुकून पाता था, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब का दीदार करके मुझे सुकून मुयस्सर आता। मैं हर वक्त जाने कायनात की मोहब्बत में गुम रहता, चूंकि जो मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन होते हैं वो ये चाहते हैं अल्लाह करे हमारे महबूब को एक कांटा भी ना चुभे। वो महबूब जो मुहिब जो होते हैं वो महबूबों को तकलीफ नहीं देते, बल्कि महबूब की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करते। ये आदाब महबूबियत भी कोई पढ़ना चाहे तो इमाम गजाली को पढ़ा करे, वो बताएंगे कि आदाब मुहिब्बियत क्या है और महबूबियत क्या है, मुहिब के अंदर कौन सी शराइत है और महबूब के अंदर कौन सी शराइत होती है। तो हजरत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये बुरी खबरें मेरे कान में पड़ती मैं बड़ा परेशान होता कि अल्लाह करे मैं दुनिया से उठा लिया जाऊं, मैं ये बुरी खबर न सुनूं कि किसी ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को एक कांटा भी चबोया है। कहते अब इस गम और दर्द की वजह से मैं मुल्क शाम चला गया। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां एक राहिब से मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझे कहा तुम्हारा नाम क्या है, मा इस्मुक? मैंने कहा जुबैर इब्न मुतअम। कहने लगे तुम मक्के के रहने वाले हो? जी मक्के का रहने वाला हूं। कहा वहां का कोई हाल सुनाओ। तो मैंने कहा वहां एक वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब है, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखों वाले महबूब है, यदुल्लाह के हाथों वाले महबूब है, अलम नशरा के सीने वाले महबूब है। उनका चेहरा इतना अल्लाह ने हसीन बनाया, जो भी देखते वो कहते खुदा की कसम ये सच्चे नबी का चेहरा है। लेकिन कुछ लोग उनके दुश्मन हो गए, वो माज़अल्लाह कहते हम इनको जनाब शहीद कर देंगे। इस बुरी खबर के डर से मैं यहाँ आ गया हूँ। राहिब कहने लगा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तौरात और इंजील और ज़बूर का मैं कारी हूँ, मेरे पास 1 लाख कम बेश 24,000 पैगम्बरों की तस्वीर है। एक कमरे में चलो मुझे तस्वीर पहचान के बताओ जाने कायनात कौन है, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से कौन है। अब आप सोचेंगे ये तस्वीर कहाँ से आई हैं? तफासिर के अंदर ये बात मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि मेरी पुश्त में अंबिया की अनवार और तजल्लियात है, सारे अंबिया मेरी पुश्त से हैं, तो उन्होंने दुआ की तो आसमान से एक ताबूत उतरा जिसमें सारे अंबिया की तस्वीर मौजूद थी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब मक्के से मदीना हिजरत फरमाई तो वो सारी तस्वीर के जो अक्स थे, शबीहात के अक्स को अल्लाह ने उठा लिया, अब वो मौजूद नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है?
तो अब ये जनाब वाला हजरत जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं एक कमरे में गया, अंबिया की तस्वीर थी, मैंने कहा इनमें जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं। फिर मैं जनाब वाला दूसरे कमरे में गया तो वहां पर मैंने देखा बाकी अंबिया की तस्वीर थी, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक नहीं थी। फिर मैं तीसरे कमरे में गया तो वहां मैंने देखा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर मुबारक, शबी मुबारक जलवागर है, और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका घुटना मुबारक पकड़ा हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा जरा ये तौरात और इंजील और ज़बूर के आलम से पूछूं तो सही कि ये तो जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये जिन्होंने घुटना पकड़ा हुआ है ये कौन है? कहते अगरचे मैं जानता था कि वो ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनको जमीन में सिद्दीक कहते हैं, अर्श पे अतीक कहते हैं, जिनके बारे में जहन्नम से आजाद होने की खुशखबरी महबूब ने दी है, जिनके बारे में महबूब ने फरमाया एक तरफ सारी दुनिया का ईमान रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान रख दिया जाए तो वो वजनी हो जाएगा। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे पता था ये बचपन में महबूब के दोस्त, ये गार में महबूब के दोस्त, ये बाजार में महबूब के दोस्त, ये खलवत में महबूब के दोस्त, ये जलवत में महबूब के दोस्त, मुझे पता था। मैंने कहा मैं इसका इल्म चेक करूं, अगर ये आलिम सच्चा होगा तो इसको पता होगा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। बात मैंने बड़ी दूर की है, जो अफजलियत सिद्दीक अकबर को नहीं मानते उनके लिए यही इशारा काफी है। तवज्जो है कि नहीं है? तो जनाब वाला मैंने कहा ये बताओ ये कौन है? उन्होंने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो शख्स जिन्होंने घुटना पकड़ा हुआ है, और शवाहिद नबूवत की एक रिवायत में यह कि कंधा मुबारक पकड़ा हुआ था, सुबह फतवा न लगाना कि किताब में कंधा है और इन्होंने घुटना कह दिया, दोनों रिवायात मौजूद है। सारी किताबों का मुताला जो है वो मेरी नजर में है। तो हजूर वाला जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो इन्होंने कर दिया। फिर पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये वो है जहां महबूब का जिक्र तौरात में है, सिद्दीक का जिक्र भी साथ है। इंजील में जहां महबूब का जिक्र है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र भी साथ है। ज़बूर के अंदर भी जहां महबूब का जिक्र है वहां पर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन का जिक्र भी मौजूद है। तो कहने लगे बात यह है कि ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये जानशीन बनेंगे, ये खलीफा बिला फसल है। जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो जाएगा, ये बाद में जानशीन बनेंगे, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यही सजादा नशीन होंगे, यही खलीफा बिला फसल हैं, और ये वो नबी हैं, ये वो सिद्दीक हैं, मेरे नबी के यार हैं, जो गार में भी साथ होंगे, बाद में मजार में भी साथ होंगे। तो तौरात के अंदर भी यही है, इंजील के अंदर भी ये है, ज़बूर के अंदर भी ये है। जो अफजलुल बशर बादल अंबिया बेताकीक सिद्दीक अकबर को न माने वो इस उम्मत का आलम कैसे है? उस उम्मत के आलम जानते थे कि खलीफा बिला फसल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तवज्जो है कि नहीं है? खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और याद रखें हम खलीफा बिला फसल कुरान और हदीस की फरमूदात के मुताबिक हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं। इसके साथ साथ हम मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हुक्म पर भी मानते हैं, क्योंकि आपने फरमाया जो मुझे शेखैन करीमैन से अफजल कहेगा वो मुफ्तरी है, उसने इफ्तरा बांधा है, उसको मैं 70 कोड़े मारूंगा। अब जो कोड़े खाने की जरूरत रखता है वो अफजलियत सिद्दीक अकबर का मुनकर हो जाए, बिलाशुबा हो जाए, लेकिन हम तो अफजलियत सिद्दीक अकबर के मुनकर नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान में भी अफजलुल बशर बादल अंबिया बेताकीक सिद्दीक अकबर है, हदीस में भी आप हैं, और मौला अली के फरमान के मुताबिक भी आप हैं। तो हजरत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये फरमाया तो मैं मावे हैरत हो गया कि वारफान अला का जिक्र की मैंने तफसीर भी पढ़ी है और तस्वीर भी देखी है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे दिलरुबा है, शहनशाह हसीना है, सैयद सरवरा है, सय्याह लामका है, ततिम्मा दौरा है, जिनको अल्लाह ने इतनी अजमतें और कमालात और शान और मोजज़ात अता फरमाए हैं कि सिर्फ इस कुरान मजीद में नहीं, बाकी जितने अंबिया है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे जिक्र मेरे मुस्तफ़ा करीम का करते रहे। ये भी वारफान अला का जिक्र की तफसीर है। अल्लाह जल्ल मजदो मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सबको जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नसीब फरमाए।
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔